تو روس کی توجہ ابھی مشرقی یوکرین پر ہے۔ روس نے دونیتسک اور لوہانسک پر تازہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر ماریوپول میں پھنسے شہریوں کو نکالنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ماریوپول کے میئر کے مطابق محصور علاقوں میں پھنسے 40,000 شہریوں کو نکالا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ روس کی افواج نے یوکرین پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کئی دنوں تک خود کو دوبارہ منظم کرنے کے بعد روسی فوجوں نے یوکرین کے صنعتی مرکز ڈونباس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر زمینی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ دارالحکومت کیف میں اعلیٰ ترین سیکیورٹی اہلکار کے مطابق روسی افواج تیزی سے مشرقی یوکرین کے علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی دستے اب کریمینا اور چھوٹے سے قصبے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے ڈونباس میں 1200 ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرینی مسلح افواج کی قیادت نے بتایا تھا کہ روس ڈونیتسک اور لوہانسک کے علاقوں پر مکمل فوجی قبضے کی کوشش میں ہے، اور روس کے فوجی دستوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یوکرینی فوج نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین کے صنعتی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ زیلنسکی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ روس یوکرین کے صنعتی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تاہم یوکرین روسی فوجی حملوں کے خلاف اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ فی الحال روس مشرقی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے پر زور دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس شمال اور جنوب میں پیچھے سے گھیرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب یوکرین کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ڈونباس کے علاقے میں لوہانسک اور ڈونیتسک 2 صوبے شامل ہیں جو پہلے ہی روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہیں۔ اس کے ساتھ جنوب میں بندرگاہ کا شہر ماریوپول بھی شامل ہے۔ اس علاقے پر قبضہ کرنے سے روس کو جزیرہ نما کریمیا کے لیے زمینی گزرگاہ پر کنٹرول کرنے کا موقع ملے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اولو نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ کو ختم کرانے کی ترکی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں روس اور یوکرین کے اپنے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یوکرین کی سیکیورٹی کے ممکنہ ضمانتوں کے لیے ترکی 5 عالمی طاقتوں امریکہ، چین، فرانس، روس اور برطانیہ اور دیگر ملکوں سے بھی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے قبل ترکی کے صدر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ وہ روس اور یوکرین کے سربراہان کے مابین مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن منگل کو اتحادیوں کے ساتھ ایک ویڈیو کال کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یوکرین کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت اور روس کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا کہ امریکہ روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں عائد پابندیوں سے روس کے ریئل سیکٹر پر اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کئی اور پابندیاں آنے والے دنوں میں روس پر عائد کی جائیں گی۔ We are continuing to review and consider additional sanctions. It's been an ongoing process, but right now you will see us continue to expand our sanctions targets and to continue to take steps to both
further tighten our sanctions to prevent evasion and put in place additional sanctions. I also wanted to note a couple of comments for anyone who questions, which probably isn't anyone in this room, but maybe, whether these sanctions are having an impact. One is by the chairwoman of the Russian National Central Bank, who said these sanctions are, quote, will now begin to increasingly affect the real sectors of the economy. यूक्रेन पर रूसी हमले को आज 55 रोज गुजर चुके हैं। जंग हर रोज शिद्दत इख्तियार करते जा रही है। रूस यूक्रेन के किसी भी शहर पर मुकम्मल कब्जा नहीं कर सका है। माहिरीन का कहना है कि पुतिन की जंगी हिकमत अमली नाकाम साबित हो रही है। वहीं दुनिया भर में यूक्रेन के सदर के जज्बों की तारीफ हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के गुरूर और रूसी फौज के हमलों के दरमियान आज दुनिया अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने जंग के बारे में कहा था कि पुतिन ने हमें 5 दिन का वक्त दिया था, लेकिन हम 50वें दिन भी जिंदा हैं और हमें इस पर फख्र है। 24 फरवरी को शुरू होने वाली इस जंग को तकरीबन 2 माह होने जा रहे हैं। पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग किया तो दुनिया भर में यह बहस शुरू हो गई कि यूक्रेन कब तक रूस की ताकतवर फौज के सामने टिक पाएगा। शायद 2 दिन। हथियारों और फौज के आंकड़ों में रूस से बहुत पीछे रहने की वजह से यह ख्याल किया जा रहा था कि यूक्रेन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेगा। जंग के आगाज में पुतिन ने धमकी दी कि यूक्रेन की फौज अपने हथियार डाल दे, इनकी जान बख्श दी जाएगी। आज 2 माह होने को आ रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के किसी भी शहर पर मुकम्मल कब्जा नहीं कर सका। रूस के साथ जंग में कोई मुल्क बराह रास्त यूक्रेन के साथ नहीं आया, लेकिन दुनिया रूस के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 से ज्यादा ममालिक ने यूक्रेन को इमदाद फराहम की है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए असलहा फराहम किया। 24 फरवरी से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की फौजी इमदाद फराहम की है। अमेरिका यूक्रेन की फौज को असलहा, गोला बारूद जोर पर ज़ेलेंस्की की फौज पुतिन के जंगजुओं के दांत खट्टे किए हुए है। अमेरिका से अब तक यूक्रेन को 1400 से ज्यादा स्टेनगर मिसाइल, 5000 जेवलिन मिसाइल, 7000 से ज्यादा एंटी आर्मर, 50 मिलियन से ज्यादा गोलियां, 45,000 से ज्यादा बॉडी आर्मर और हेलमेट, लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम और ट्रैकिंग रडार मिल चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद $800 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 से ज्यादा ममालिक ने यूक्रेन को इमदाद फराहम की है। रूस के हमले के खिलाफ अगर यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत रही है तो वो 1.5 लाख गैर मुल्की जंगजू हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से रजाकार के तौर पर यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। इसमें साबिक कमांडोज, फौजी एजेंट्स, समंदरी जंगजू शामिल हैं जिन्हें जंग के इस माहौल के लिए तरबियत दी गई है। ये लोग मुख्तलिफ शहरों में यूक्रेनी अफवाज के साथ मिलकर रूसी फौज के हमले की हिकमत अमली को नाकाम बना रहे हैं। एक तरफ पुतिन की स्ट्रेटेजिक गलतियां और दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के जज्बे ने इस जंग को तूल दे रखी है। बाद ही रूसी मीडिया ने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन छोड़कर जाने का दावा किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी की और बताया कि वो कीव में ही हैं। रूस ने ज़ेलेंस्की के सामने शराइत भी रखी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह शराइत मानने से इनकार कर दी। ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की। इसकी अपील का असर भी हुआ और यूक्रेन के कई शहरों में आम लोग रूसी फौज से लड़ते हुए देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां बडगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। बाइक पर सवार मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंककर राह फरार अख्तियार की। ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर फटा, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
हम इस वक्त बड़गाम पुलिस स्टेशन के बाहर है और यहाँ पर कुछ देर कबल मिलिटेंट ने पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद फायरिंग की, लेकिन जो यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इस समय में जो मिलिटेंट थे वो भागने में कामयाब हुए हैं। पूरे इलाके को इस समय मुहसरे में लिया गया है, तलाशी कार्रवाई जारी है। इस हमले में अगर हम कहें तो किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया है और जो मिलिटेंट है उनकी तलाश जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और अब एक और खतरा सामने आ रहा है। कोरोना के मामले फिर से सर उभार रहे हैं। दिल्ली और केरल में मुस्बत केसेस ज्यादा देखने को मिले हैं। साथ ही नए वेरिएंट की भी दस्तक है। चीन के कई शहरों में हिसार लाजिम करार दिया गया है। WHO ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। कोरोना एक वबा से कहीं ज्यादा अब आलमी दर्द सर है। दुनिया भर की ममालिक, हुकूमतें, सेहत आम्मा के इदारे सब अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। लेकिन कोरोना हर मर्तबा अपनी शक्ल, पहचान और वेरिएंट बदलकर ज्यादा ताकतवर शक्ल में उभर कर सामने आता है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर ने हजारों अपनों को छीन लिया। अभी इस दर्द से उभरे भी नहीं थे कि चौथी लहर के खदशे गर्दिश कर रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की केसेस में इजाफा हो रहा है। चीन में कोरोना बेकाबू है, कई शहर हिसार में हैं। रोजाना कोरोना की शरह में इजाफा ही हो रहा है। तमाम तर रोकथाम और कोशिशों के बावजूद कोरोना मजीद ताकतवर होता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है कि कोरोना का नया वेरिएंट खामोश दस्तक देता है। किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना से मुतासिर है। नया वेरिएंट ज्यादा मोहलिक है। चीन के कई शहर हिसार में हैं। चीन अपनी पूरी तकनीक कोरोना की रोकथाम में लगा चुका है, लेकिन रिजल्ट सिफर है। हिंदुस्तान में कुछ दिनों पहले ही सभी ने एहतियात की चादर उतार फेंकी थी, ये सोचकर कि अब कोरोना लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना की नई रफ्तार एक मर्तबा फिर अलर्ट कर रहा है। केरल और दिल्ली की ताज़ा रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली हुकूमत के सीरो सर्वे में पता चला कि 80% बच्चे पहले ही मुतासिर हो चुके हैं, इसलिए वो महफूज हैं। अगर आप नहीं जानते तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ था। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूल खुलने के बाद कई बच्चे मुतासिर पाए गए। मुतासिरा स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया। एम्स में इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और कम्युनिटी मेडिसिन के सदर डॉक्टर संजय रॉय ने कहा, 60% बच्चे मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 27 करोड़ बच्चे मुतासिर हुए और उन्हें पता भी नहीं था। इसलिए इसका पता नहीं चल सका क्योंकि बच्चों में कोई संगीन बीमारी नहीं होती। ये ना होने के बराबर है। इसलिए अब डरने की बात नहीं है। 100 में से करीब एक बच्चे को अस्पताल में दाखिले की जरूरत है। मुल्क की ज्यादातर आबादी में कुव्वत मुदाफियत बढ़ चुकी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं और खास तौर पर नया वेरिएंट ज्यादा मोहलिक हो सकता है। अब दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने का मतलब होगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, और अगर वाकई हमने एहतियात नहीं रखा और कोरोना को खत्म करने के लिए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं दिया तो चौथे लहर की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इजराइल की बर्बरियत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इजराइल की जानिब से तामीर करदा होम्स के इजरायली नौ आबादकार बस्तियों के खिलाफ हज़ारों फ़िलिस्तीनियों ने मुजाहरा किया और नौ आबादकारी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद इजरायली फौजियों और फ़िलिस्तीनियों में झड़प शुरू हो गई और 40 फ़िलिस्तीनी जख्मी हो गए। इजरायली फ़ौज ने होम्स के तमाम दाखिले को बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि इजरायली फ़ज़ाइया ने अल-सुब गज़ा पट्टी में भी बमबारी की थी। इजराइल का दावा है कि यह कार्रवाई हमास के रॉकेट हमले के जवाब में की गई है। ख्याल है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मस्जिद अक्सा के सहन और इसके अतराफ में इजरायली फौज और फ़िलिस्तीनियों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसके नतीजे में 150 से ज्यादा फ़िलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं, कुछ जाँ बहक भी हुए हैं। इजराइल ने कई फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया है।
उधर स्वीडन में इंतहा दाएं बाजू के सियासतदान रॉस्मस पुलोडन की जानिब से कुरान की बेहुरमती और मुल्क भर में इसे नजर आतिश करने के मंसूबे पर हालात कई रोज से कशीदा है। अब तक होने वाली हंगामा आराई में 40 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 1.5 दर्जन से जायद गाड़ियां नजर आतिश की गई हैं। जुमेरात से शुरू होने वाली हंगामा आराई में कुछ पुलिस अफसरान भी जख्मी हुए हैं। स्वीडन की पुलिस ने कहा है कि बाज मुजाहिरीन जराइम पेशा ग्रुपों के जानबूझकर पुलिस को निशाना बनाया। कई मुस्लिम ममालिक ने एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम ग्रुप के डेनिश स्वीडिश सियासी रहनुमा की जानिब से कुरान पाक को जलाए जाने के अमल की मजम्मत की है। तो उधर तेहरान में स्वीडन के सिफारतखाने के बाहर कुरान की बेहुरमती और नजर आतिश करने के मंसूबे के जबरदस्त एहतजाज किया गया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान सईद खतीब ज़ादा ने कहा कि स्वीडन में जो कुछ हुआ वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। آنچه که در سوئد اتفاق افتاد بسیار منزجر کننده بود. جمهوری اسلامی ایران به اشد وجه محکوم میکنه این هتک حرمتی که به ساحت مقدس کلام الله مجید اتفاق افتاده بود. تکرار این موضوع در سوئد توسط اتباع سوئد و تبعهای سوئد واقعا جای تأسف عمیق هست. منتظر اون هستیم که دولت سوئد به جای اینکه از آزادی بیان سوء استفاده کنه و آزادی نفرت پراکنی رو فراهم بیاره برای اونهایی که میخوان حتاکی بکنن و حتاکان به مسئولیت خودش عمل بکنه و عکس العمل مناسب رو अफगानिस्तान के दारुल काबुल में एक स्कूल में बम धमाकों के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये धमाके काबुल शहर के नवाह में हजारा शिया आबादी के एक इलाके में हुए। काबुल पुलिस के तर्जमान के मुताबिक इन धमाकों में 6 अफराद हलाक जबकि 11 जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक काबुल के मगरबी हिस्से में वाक़े दश्ते बरची के अब्दुर्रहीम शहीद स्कूल के बाहर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। धमाका उस वक्त हुआ जब स्कूल के तलबा सुबह की क्लासों से बाहर निकल रहे थे। निशाना बनने वाले तलबा को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि पैदरपे होने वाले धमाकों की तहकीकात की जा रही है और मजीद हलाकतों का खदशा है। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि यमन के हूसी बागियों के साथ जंगजू बच्चों के इस्तेमाल को ख़त्म करने पर मुफ़ाहमत तय हो गई है। इस सिलसिले में एक मरहलावार मंसूबा तैयार किया गया है जिसके तहत स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों की रोकथाम की जाएगी। इस ताल्लुक से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक एक्शन प्लान मुरतब किया है जिस पर हूसी बागियों ने दस्तखत किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की नुमाइंदा खुसूसी वर्जीनिया गाम्बा ने तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल पर मबनी इस इक़दाम की तारीफ़ की और तरफ़ैन से कहा कि वो मुल्क में जंगबंदी की बहाली के तहत बच्चों के हुकूक और इनकी ज़रूरियात को तरजीह देने में पहल करें। इस मंसूबे के तहत हूसी बागी बच्चों को बतौर जंगजू इस्तेमाल न करते हुए कैदी बच्चों को रिहा करेंगे। First, I would like to commend the authorities here in Sana'a for committing to this action plan. أود أن أحيي السلطات في صنعاء على التزامهم بهذه الخطة. A plan designed to protect children and prevent grave violations against them. هذه الخطة التي صممت لمنع وإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. The signing we are about to witness is a very important step toward protecting Yemen's children. التوقيع الذي نحن بصدده اليوم هو خطوة هامة باتجاه حماية الأطفال في اليمن. They have suffered terribly through more than 7 years of conflict. الأطفال في اليمن عانوا بشكل مروع خلال الأعوام السائل. खबर श्रीलंका से है जहां सदर गोटाबाया राजपक्षे और उनके खानदान के अफराद के इस्तीफे को लेकर एहतजाज मुसलसल जारी है। मुजाहिरीन ने मुल्क के माशी बहरान पर इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक श्रीलंका के आइन को सदारती इख्तियारात और पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाने के लिए तब्दील किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे ने पार्लियामेंट को बताया कि इख्तिदार की मुंतकली फौरी इक़दामात में से एक होगी जो मुल्क को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए उठाए जा सकते हैं और इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ बातचीत में मदद कर सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ ही सदर राजपक्षा ने नई काबीना का ऐलान किया है। इस नई काबीना में 17 अरकान शामिल हैं। काबीना में सदर के भाई और वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षा के अलावा
और कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है। एक लंबे इंतजार और अनगिनत क़यास-आराइयों के बाद पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने आखिरकार आज हलफ लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक काबीना ने ऐवान सदर में मुनक़्क़िदा हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी के बजाय सेनेट के सदर सादिक संजरानी ने काबीना के अराकीन को हलफ दिलाया। काबीना में 31 मरकजी वज़ीर, 3 वज़ीर ममलिकत और 3 मुशीर हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।